یا رسول اللہ اسٹیج پہ جلوہ فروز پیر طریقت رہبر راہ شریعت مفتاح معرفت کاشف اسرار حقیقت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان دام ظلہ النورانی صدر جلسہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خوش محمد صاحب قبلہ جملہ مؤقر مقتدر علماء کرام مداحان رسول برادران طریقت ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان میخانہ نقش بندیت سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الرؤوف الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ گھبرائے نہ، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے موضوع سے ہٹ کر میں گفتگو نہیں کروں گا، بس فرق یہ ہے کہ قرآن میں جتنا غوطہ لگاتا ہے اسے اتنی موتیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ یہ آیت کریمہ علماء نے اس کی تفسیر الگ بیان کی ہے، اور صوفیہ بالخصوص میری خانقاہ نے اس کی تفسیر الگ بیان کی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، حالانکہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں، یا تو میرے ذہن کی تعریف کیجئے گا، یہ میرے ذہن کی جو تعریف ہے یہ میرے مرشد کا کرم ہے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اب کوئی پہلے کی بات نہیں ہے، یہ صرف اسٹیج پر بیٹھا تھا، یہ ذہن میں بات آئی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، علماء بیٹھے ہیں، یہ ایک الگ منزل ہے، یحببکم اللہ یہ الگ مقام ہے۔ ہمارے سلسلے میں دو مقام ہیں، اسی لیے ہمارا سلسلہ بہت افضل ہے، سبحان اللہ، بہت افضل۔ بس کیا ہے کہ ہم مقرروں سے سنتے چلے آئے ہیں، ہمارے ذہنوں کی پرورش ہی یہی ہوئی ہے، کیا بات، پرورش ہی یہی ہوئی ہے کہ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ جو اس میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ افضل کون ہے۔ بے شک، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ غوطہ لگائے گا سمندر میں وہ نہ بتائے گا، وہ نہ موتی نکالے گا خزانہ، اور سمندر سے خزانے نکالے جاتے ہیں، ساحل کھڑا ہو کر سمندر کے خزانے نہیں نکلتے، سمندر میں غوطہ لگاتا ہے وہی نکالتا ہے کہ سمندر میں کون سا خزانہ ہے۔ شیئر کر کے ہاں، ایک ہے عروج، ایک ہے نزول، انشاءاللہ بولوں گا اس پر۔ آئیے ہم سب بڑے ادب و احترام کے ساتھ
नबी की बारगाह में दुरूद पाक नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शायरी कहने का ढंग तो नहीं है, अपने उस्ताद का कलाम पढ़ रहा हूँ। समाप्त हूँ मैं। एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। मैं कदे इश्क के हर जा, मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं। मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं। रौनक के उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बा, रौनक के उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बा, इश्क सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं। और ये बड़ा प्यारा शेर है। नाम जिंदा है मज़ारात भी उनके आबाद, नाम जिंदा है मज़ारात भी उनके आबाद, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते। जिंदगी हो गई जिनकी भी हवाले उनके, जिंदगी हो गई जिनकी भी हवाले इनके, उनको हर सांस में जीने का मजा देते हैं, उनको हर सांस में जीने का मजा देते हैं। बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती हैं, बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती है, नाम अहमद की हमेशा जो सदा देते हैं। मैं कदे खुल गए इरफान के साकी आए, मैं कदे खुल गए इरफान के साकी आए, वो तो प्यासों को सदा जामे वफा देते हैं, प्यासों को सदा जामे वफा देते हैं। उनको चाहो यही आईने वफादारी है, इनको चाहो यही आईने वफादारी है, ये खताओं पे हर एक को दुआ देते, ये खताओं पे हर एक को दुआ देते। उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। हज़रात मोहतरम, आज जिस ताजदार का हम जश्न मना रहे हैं, और जो महीना चल रहा है माह रबीउल नूर शरीफ, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। राजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे आले रसूल। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है सब घराना नूर का। हजरत आकाए नक्शबंद के जरिए से और इमाम रब्बानी इंदिल नूरानी की दुफैल अल्लाह ने हमें ऐसा सिलसिला दिया, फिर सिलसिले के साथ ऐसा पीर दिया कि सिलसिला भी लाजवाब है, हम सब का पीर भी लाजवाब, सब लाजवाब, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। इसमें मार्फत और बहुत कुछ है। बेशक। अब अगर हम बयान करें, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन अगर हकीकत तक लोग पहुंच जाएं, लोगों पर ये बात मुनकशिफ हो जाए कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा और अफजल है जो कम समय में अल्लाह तक पहुंचा देता है, कम समय अल्लाह तक पहुंचा देता है। आज हमारे औलिया सिलसिले नक्शबंदिया में जो हमारे मशाइख हैं, क्यों चंद बरसों में आला मकाम हासिल कर लेते हैं। अरे इनकी बात छोड़ो, इनके गुलामों के गुलामों में हजरत गुलाम अली देहलवी का नाम आता है। 13वीं सदी के मुजद्दिद हैं हजरत गुलाम अली देहलवी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने मारिफ का वो
وہ खजाना अता फरमाया था, वो मकाम अता फरमाया था। इमाम रब्बानी के वो सच्चे आशिक थे। वो इरशाद फरमाते मैं बड़े बड़े मज़ारात पे जाता या मुराक़बा भी करता, वहाँ जिक्र करता। अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुँचा दिया, इस मकाम पे पहुँचा दिया। जब मैं तवज्जो दिया करता था तो मज़ार वाले का नूर कम पड़ जाता था, मेरा नूर भारी पड़ जाता। क्या बात है, इनके गुलामों का ये मकाम है कि मैं बड़े बड़े मज़ारों पे मुराक़बा करता तो उनके अनवारों तजल्लियात जो साहिब कब्र के मज़ारात में जो इक्तिज़ाब फैज़ के लिए जाते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, मैं वहाँ मुराक़बा करता। इरशाद फरमाते मुझे शर्म आने लगती थी। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों शर्म आती है? कहते हैं कि मेरा नूर इतना गालिब हो जाता था, उनका नूर मग़लूब हो जाता था, इसलिए मैं अपनी तवज्जो को कम करता था ताकि इनका नूर भारी रहे। क्या बात है, दीवाने ऐसे हैं आकाए नक्शबंद के गुलाम इस मकाम पर फाइज हैं, तो उनका आलम क्या हुआ? उनके गदा भर देते हैं जब शहाने ज़माना, उनके गदा भर देते हैं जब शहाने ज़माना की झोली। अमा मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। अरे जिनका नाम लो तो दिल को सुकून मिल जाता है। कोई ऐसी कोई आम वली का नाम आकाए नक्शबंद नहीं है, मोहम्मद बिन मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद, जिनका नाम बड़े बड़ों ने लिया था। जिनके बारे में गौसे आदम ने कहा था, बुखारा की तरफ रुक करके इरशाद फरमाते मुझे यहाँ से एक मर्द की बू आती है। आज हम मर्द कहते हैं, आपको कहेंगे हमें कहेंगे, अल्लाह वाले जब किसी को मर्द कहते हैं वहाँ अल्लाह के वली मुराद होता है। सुभान अल्लाह। मुझे किसी वलीउल्लाह की खुशबू महसूस होती है। लोगों ने पूछा हुजूर किसकी खुशबू महसूस हो रही है? आपने कहा मोहम्मद बिन मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद की खुशबू महसूस हो रही है। वो मेरे फैज का अमीन होगा, जो मेरा फैज लेना चाहेगा उस दर से जाके लग जाएगा, वहाँ लगेगा तब मेरा फैज पाएगा। फैज का अमीन होगा। क्या आकाए नक्शबंद, सुभान अल्लाह। अरे उनकी बात ही मत पूछो। हजरते आकाए नक्शबंद सैयदना मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी पीरो मुर्शिद से मुरीद हुए, मकाम गजब का है, बचपन ही पैदाइशी वली। बाबा सम्मासी ने कहा, बारहा इरशाद फरमाते जब कसरे हिंदुआ से गुजरते, कसरे हिंदुआ से जब आप गुजरते हैं, एक बार नहीं कई बार हजरत बाबा सिम्मासी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया मुझे यहाँ से एक वलीए कामिल की खुशबू महसूस होती है। मुझे लगता है ये कसरे हिंदुआ एक जमाने में कसरे आरिफा हो जाएगा। आरिफा हो जाएगा। आरिफ माने वली, आरिफा वली की जमा बहुवचन, वलियों का शहर हो जाएगा। क्या बात, अल्लाह। तो पहले ही से पेशगोइयां की गई, बशारतें दी गई, आने वाला कोई आम नहीं है। अरे किसी वली के बारे में आपने सुना है कि वो अल्लाह से हम कलाम हो तो जिस तरह महबूब और मुहीब बात करते हो, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए। किसी वली के बारे में सुना आपने? हम तुम्हें बताएं कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का मकाम क्या है। वो रब से इस तरह बात करते हैं, रब से इस तरह बात करते हैं। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद ताजदार नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की बात को हजरत बाबा सिम्मासी की गोद में जब पेश किया गया, आप छोटे हैं, 3 रोज के हैं सिर्फ, अपनी जबान जुसाई और इरशाद फरमाया अमीर कुलाल से, ए सैयद अमीर कुलाल, तेरे बेटे
ये मेरा बेटा है, ये बहाउद्दीन मेरा बेटा है, इसकी तरबियत में कोई कसर मत रखना, नहीं तो हम तुमसे सवाल करेंगे। इसकी तरबियत में कोई कसर मत रखना, नहीं तो हम तुमसे सवाल करेंगे। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शिद की सोहबत में रहा करते थे। बेशुमार मुरीदीन थे, जिक्र हो रहा था, मुराकबा भी होता था, जिक्र व इबादत भी हो रहा था, मुजाहिदात भी किए जा रहे थे, राज रियाजतें भी हो रही थी। लेकिन याद रखें, जो अल्लाह की बारगाह से चुन लिया जाता है उसका मकाम ही अलग होता है। ये जो सिलसिले नक्शबंदिया में जिक्र खफी जो आया ये बहाउद्दीन नक्शबंद के जरिए से। उनसे पहले इस सिलसिले में जिक्र खफी के साथ साथ जिक्र जहरी भी था, और जहरी ज्यादा था। मारिफत की बात होती मुर्शिद की बारगाह में, जब असरारुल रुमूस की बात होती तो हजरत ताजदार नक्शबंद बैठे रहते। जैसे ही जिक्र शुरू होता, जिक्र जहरी शुरू हो जाता, यानी बुलंद आवाज से हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद उठते और किनारे चले जाते। सुभान अल्लाह। मुर्शिद देख रहे हैं, बोलते नहीं। मकाम देखिए आप, क्या बात। मुर्शिद देख रहे हैं, बोलते नहीं। बारहा हुआ जब जब जिक्र जहरी किया जाता, आप फौरन उस नशिस्त को, उस महफिल को छोड़ देते, कहीं और चले जाते, वहां जिक्र खफी में मशगूल हो जाते। उर्दू ने कहा, हुजूर ये तो बड़ा बेअदब लड़का है, ये आपकी बारगाह में गुस्ताखी करता है, ये आपने जो दर्श दिया है जिक्र खफी जहरी का, ये जिक्र जहरी नहीं करता है, उठ जाता है, जिक्र ही नहीं करता है। एक बार नहीं कई बार आपकी बारगाह में शिकायत की गई, यानी अमीर कुराल की बारगाह में शिकायत की गई, ये मुरीद बेअदब है, गुस्ताख है, ये जिक्र जहरी नहीं करता है, ये आपकी बारगाह में गुस्ताखी करता है, ये आपके दिए हुए अतिये पर एतराज करता है, वो जिक्र नहीं करता है, वो किनारे चला जाता है, वो कहीं और जाता है, वहाँ जिक्र खफी करता है। हजरत सैयद अमीर कुराल कुछ नहीं कहते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। जब 500 मुरीदों का हुजूम था, सुभान अल्लाह, 500, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मुरीदों का जम्मे गफीर है। आप सारे मुरीदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद की तरफ कहते हैं, ये मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद इसकी तुम शिकायत मुझसे करते हो, इसकी तुम शिकायत करते हो कि ये अलग बैठ कर जिक्र खफी करता है, जिक्र जहरी नहीं करता है। इसकी मर्जी जो चाहे करे। अरे मैंने तो जो कुछ मेरे सीने में था, मैंने सब रूहानियत और मार्फत की दौलत इसके सीने में उगल दी है। आलम ये हो गया है कि मेरे पिस्तान, मेरा सीना खुश्क हो गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर मुर्शिद, नारे तकबीर। मेरा सीना खुश्क हो गया है, मेरा सीना खुश्क हो गया। इसके बारे में कुछ मत कहना, ये जो कहता है करने, जो करता है करने। अब देखें आप, सालिक जब सुलूक की मंजिल तय करता है तो 2 मकाम आते हैं। एक मकाम है इंबिसात का, एक मकाम है इंक़िबास का, एक मकाम है बस्त का, एक मकाम है कब्ज का। जब मकामे बस्त में रहता है जब सालिक, तो बड़ा जोश होता है, बहुत जोश होता है, बड़ा अच्छा काम करने का, खूब नवाफिल पढ़ो, खूब कुरान की तिलावत करो, खूब जिक्र करो। जब मकामे कब्ज में पहुंचता है तो सालिक का सुलूक बंद हो जाता है। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, सुने आप, ये जलसा आप हमसे उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि मैं धुआंधार तकरीर करूंगा। मैं अपने पीर भाइयों को तसव्वुफ का दर्द भी देना चाहता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह, हक है, यही है, बेशक हक है। मेरे ज़हन व फिक्र में कभी कुछ रहता ही नहीं है। मेरे मुर्शिद ने कह दिया, तुम घबराना मत, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। वाह, सुभान अल्लाह। मेरे ज़हन में नजराने की कोई बू तक भी नहीं रहती है।
میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے پیر بھائیوں کو کوئی سبق مل جائے. بے شک. آپ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کتابیں پڑھا کریں. آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں صحبت میں رہیں تو کچھ پوچھا کیجئے، ذکر کرنا چاہیے. ان سے عرض کیجئے حضور مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے اپنے قلب کو روشن کرنا ہے. میں صرف مرید بن کر صرف یوں ہی مرید نہیں رہوں گا. پہلے جو لوگ مرید ہوا کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، وہ سلوک طے کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے. حضور کرم فرما دے، توجہ فرما دے. غلام آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، اگر میرا برتن اس لائق نہیں ہے تو توجہ فرما دے، میرا قلب بھی روشن ہو جائے، اس لائق بھی بن جائے. اب آپ توجہ فرما دے تو یہ قلب روشن بھی ہو جائے. بے شک. حق ہے، حق ہے. یہ سبق سیکھیا. تو حالت انقباض میں جب بندہ سالک رہتا ہے تو اس کی منزل رک جاتی ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ سے ہم کلامی ہوئی. حاطفی غیب سے آواز آئی، اچھا بتا میرے پیارے، مجھے بڑا یاد کرتا ہے، تجھے چاہیے کیا؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند کا مولا مجھے جو میں مانگوں گا تو دے دے گا کہ نہیں، جو میں دوں گا وہ تجھے لینا پڑے گا. سبحان اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ جو میں دوں گا تجھے لینا پڑے گا. حضرت بہاؤالدین نقشبند کا مولا نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ تو عطا کرتا. یہ محبوب محب کی بات ہے. اب آج کل علماء کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، عجیب یہ مولوی یہ عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، جو میں دوں گا وہ تو لے لے. محمد بہاؤالدین نقشبند نے کہا، تاجدار نقشبند نے کہا، آقائے نقشبند نے کہا، میرے اللہ نہیں، جو میں عرض کرتا ہوں تجھ سے وہ عطا کر دے. گفتگو ہوتی رہی. دیکھو میرے آقائے نقشبند کا مقام. پھر میں تمہیں بتاؤں گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی تفسیر اور تشریح. گفتگو جاری رہی تو اللہ نے کہا ٹھیک پیارے، جب تو ضد کر لیا ہے، اصرار کر لیا کہ نہیں جو میں کہوں گا وہ دے دے، بول میرے پیارے تو کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند، اے میرے اللہ اب زمانہ ایسا نہیں ہے کہ لمبے لمبے چلے کیے جائیں گے، لمبے لمبے مجاہدات کیے جائیں گے، کنویں میں لٹکائے جائیں گے، پہاڑوں پہ چھوڑ دیے جائیں گے، گھر کو چھوڑ دیا جائے گا. اب ایسا زمانہ نہیں ہے. اے میرے اللہ مجھے آسان ترین راستہ عطا فرما دے، کچھ گھڑی اس راستے پہ اور تجھ تک پہنچ جاؤں. اللہ نے انعام فرمایا. اے بہاؤالدین راستہ چاہیے. ابھی تک لوگ سلوک کو مقدم رکھا کرتے تھے، اب تم سلوک کو مقدم مت رکھنا، جذبے کو مقدم کرنا. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. واہ حق ہے. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. جذبہ ہمارے سلسلے میں مقدم ہے. ابھی تک سلوک، اب بتائیں آپ جو صرف سلوک کے راستے سے جاتے ہیں اللہ تک، وہ ایک مقام میں جا کر پھنس جاتے ہیں. کوئی برا نہ مانے. امام ربانی نے اسے برا بھی نہیں کہا، اس کی تعریف بھی کی ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ ان کی خطا تھی، یہ خطا اجتہادی تھی ان کی خطا اجتہادی پر اسے مبنی مانتے ہیں. جب بندہ سالک ولایت صغریٰ کے مقام کے آخری مقام پہ پہنچتا ہے، جب اللہ کا جلوہ بے حجاب دیکھتا ہے اور رب کا نور اتنی تیز پڑتا ہے کہ ساری جگہ ساری دنیا میں صرف وہی نور نظر آتا ہے، صرف وہی نور نظر آتا ہے، نور ہی نور ہے. اس نور میں سب گم ہو جاتے ہیں. شیخ ابن العربی نے یہی نے دیکھا تو اللہ کے نور کو دیکھا
जब नूर देखा तो इतनी तेज नूर पड़ा, इतनी तेज नूर पड़ा कि उनकी आग से ये पूरे मौजूदात, ये मुमकनात, ये मखलूकात, ये सारी दुनिया माँ से वल्लाह गुम हो जाती है। जब गुम हो जाती है तभी कहते हैं हमाऊस, कहते हैं हमाऊस, सब वही है, वही है, सब वही है। इमाम रब्बानी ने कहा नहीं, सब वही नहीं है, हमारे सब उससे है, सब उससे है। तो वहां जाकर अच्छे वलियों को इमाम रब्बानी ने कहा तो गुरु जो रब तक पहुंचते हैं खो जाते हैं, मुस्तहलिकीन कहा जाता है, जो उस मकाम से आगे बढ़ते हैं, रब का जलवा हकीकी देखकर वापस आकर अपने गुलामों को फैज़याब करते हैं, उन्हें राजीन अल्लाह कहा जाता है। या अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, इल्लाह कहा जाता है, राजिईन इल्लाह। अब सुने आप कहेंगे ये कैसे होगा, ये इमाम रब्बानी ने कैसे कह दिया। मैं बहुत छोटा था तो हजरत मुफ्ती आफाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मस्जिद में पीर के दिन दर्स दिया करते थे, मुक्तबात इमाम रब्बानी का। उन्होंने मिसाल दी, देखो बेटो, जो लोग इमाम रब्बानी का जो मसलक लोग नहीं समझ पाए, उसकी वजह ये थी कि शेख इब्ने अरबी देखे इतनी तेज नूर पड़ा, ये सूरज निकला। अब जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, तो अब उसकी रोशनी में तारे नजर आते हैं, सही बताइएगा, तारे नजर आते हैं? आसमान में जितने तारे हैं सब गुम हो जाते हैं कि नहीं? बेशक, क्योंकि सूरज बड़ी आफताब के साथ निकलता है, उसकी रोशनी गालिब रहती है, सब मगलूब हो जाते हैं, इसलिए तारे छुप जाते हैं। हजरत मुफ्ती आफाक अलैहि रहमतुल रिजवान ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटो, इमाम रब्बानी के मसलक लोग समझ नहीं पाए, इब्न अरबी भी उस मकाम को नहीं समझ पाए। अल्लाह का नूर इतनी तेज पड़ा, इतनी तेज पड़ा कि सारा सब कुछ छुप जाता है, बंदा अपना होश खो बैठता है जब बेजाब जलवा देखता है। जब अभी लाउंसर साहब, मौलाना अब्दुल अजीज साहब अब ये बेखुदी में आ गए, अब ये बेखुदी में आ गए, ये जलवा ही ऐसा है कि बेखुद हो जाते हैं, और ये ऐसे हैं जो बेहोश हो जाते हैं, उसे होश दे देते हैं। आपको गिरने आता है तो उन्हें संभालने आता है। हक है, बेशक। तो अब ये इल्मी बातें बड़ा आसान बता रहे हैं। तो इस रास्ते पे जो लोग गए, कहते हैं एक ही वजूद है, क्या कहते हैं? एक ही वजूद है वल्लाह। इमाम रब्बानी ने कहा कि जो बात के उनके मुत्तबीन हुए वो शेख इब्न अरबी के कौल को समझ नहीं सके। उनके कहने का मकसद ये है कि एक ही वजूद का मतलब कि जैसे हजरत यहाँ जलवा अफरोज हो जाए, जलवा अफरोज है बड़े आफ्ताब के साथ। हम तो इस मजमे में अगर कोई मर्द है तो ये अल्लाह का वली है, कोई मर्द है तो फिर यही है। क्या ये सब मर्द नहीं है? ये सब मर्द नहीं है, ये भी सब मर्द हैं, हम भी मर्द हैं, ये भी मर्द हैं, ये सब बैठे मर्द हैं, ये सब बैठे मर्द हैं। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा होता है तो उसके बारे में बोला जाता है, अगर मजमे में कोई है शानदार तो मेरा पीर शानदार है। हक है, हक है, हक है, क्या बात है, बेशक, बेशक, बेशक। तो मसला यही। तो इमाम रब्बानी ने कहा कि शेख इब्न अरबी ने कहा कि जो कुछ है वही है, उसी की जात है। अपने जहन में मखलूका मुमकिनात को लाते नहीं, इनकी वजूद की हैसियत क्या है, ये आज कल थे और हो गए, फिर नहीं होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। अगर कोई जात रहेगी तो अल्लाह की जात रहेगी। अब उनके बाद मानने वालों ने कहा नहीं, वही जात है, वही नूर है, तब बस वही आखिरी मंजिल है, उसे मकामे वहदतुल वजूद कहा जाता है।
इसे क्या कहा जाता है? मकाम वहदतुल वजूद। वजूद। इमाम रब्बानी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सूरज निकलता है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, सितारे छुप जाते हैं, ये अलग बात है। सितारे दिखते नहीं, जिनकी बिनाई में अल्लाह ताला ऐसी कुव्वत अता फरमाता है, सूरज को भी देखते हैं और छुपे तारों को भी देखते वाह हैं। सुभान अल्लाह, हक है, हक अल्लाह है। की अता है। इमाम रब्बानी उस मकाम पर पहुंचकर बेहोश नहीं हुए, वो देख रहे थे ये तो जरा सा जलवा है, ये तो मकाम वहदतुल वजूद है, इससे ज्यादा जलवा लेना है तो आगे कदम बढ़ा। वाह सुभान अल्लाह, आगे कदम बढ़ा। वो छुपे हुए सितारों को देख रहे थे। वाह। इसीलिए इस सिलसिले में कामिल सुलूक है, और भी सिलसिलों में है। उन्होंने नाम गिराए इमाम रब्बानी ने कि बहुत खाल खाल, बहुत खाल खाल गौसे आजम का नाम लिया, और भी चरण, और भी बहुत खाल खाल अल्लाह वाले जो और सिलसिले में है, जो इस मकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन अल्लाह ने नक्शबंदिया सिलसिले में ऐसा फैज़ अता फरमाया है, ऐसा फैज़ अता फरमाया है जो 10-20 साल लगा देता है, उस मकाम तक पहुंच जाता है। वाह सुभान अल्लाह, हक है। शर्त यह है कि मुर्शिद की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। बेशक बेशक। यही कहते हैं, अल्लाह ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए मेरे महबूब तुम कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। वाह। ये मकामे वहदतुल वजूद है, यहाँ आशिक पाया जाता है और युहिब्बुकुमुल्लाह में माशूक पाया जाता है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत करता है, जिक्र और मुराक़बा करता है, मकाम वहदतुल वजूद से उबूर करता हुआ वहदतुल शुहूद तक पहुंचता है, अल्लाह के जलवों को बेहिजाब देखता है, फिर वहां से नुज़ूल करता है। वाह। नुज़ूल करता है, जब नुज़ूल करता है तो युहिब्बुकुमुल्लाह में पहुंच जाता है, युहिब्बुकुमुल्लाह का जलवा मिल जाता है। अभी आशिक था, अभी आशिक था, अब माशूक हो जाता है। जब आशिक होता है तो अल्लाह के मर्जी पे चला करता है, जब माशूक हो जाता है तो अल्लाह उसकी मर्जी को लागू कर देता है। सुभान अल्लाह, हक है। बेशक। हज़रत आकाए नक्शबंद माशूक थे। वाह अब माशूक की अल्लाह, बात मानी जाती है, सुभान मानी अल्लाह। जाती है ना। अब बताइए युहिब्बुकुमुल्लाह का माना क्या होगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा तो उसकी बात नहीं मानेगा, हैं? उसकी बात मानेगा ना। वो कहेगा मौला ये रास्ता दे दे, क्या वो नहीं देगा? देगा, देगा, जरूर देगा। बेशक। अरे गौसे आजम कसम खा लें, खाना नहीं खाऊंगा। लोग ये मौलवी लोग एतराज करते हैं, फतवा देते हैं, वो तो कसम खा लिए नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तू खिलाएगा तो खाऊंगा। हक है। ये माशूक का मकाम है। जब उस मकाम पे पहुंच जाता है, जब माशूक बन जाता है तो अल्लाह उसकी अदाओं पे और दाओं पे मेहरबान होता है। अच्छा तू नहीं खाएगा, आ मेरे प्यारे मैं तुझे खिलाता हूँ। वाह। अब आशिक चाहे नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा तू खिला दे, तो आशिक लाख बार कहेगा मिलेगा नहीं, जो माशूक रहेगा उसे मिलेगा। हमारे आकाए नक्शबंद माशूक थे, सुभान अल्लाह, महबूब वली थे। बेशक। अल्लाह ने ऐसा नवाजा था। हजरत आकाए नक्शबंद इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी सैर हुई तो मेरी सैर बढ़ते गई, जुनैद बगदादी से आगे निकला। जुनैद बगदादी आपसे पहले, मेरी सैर हुई, जुनैद बगदादी से आगे निकला, मेरी सैर और आगे बढ़ी, शेख शिबली से आगे बढ़ा, मेरी सैर और आगे बढ़ी, मैं बायजीद बुस्तामी से भी आगे, बायजीद बुस्तामी से भी आगे बढ़ गया। फिर मेरी सैर हुई, आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, इतना बड़ा कि मेरी आंखों के सामने एक अजीम शान नूरानी महल देखा मैंने, बहुत नूरानी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा नूरानी महल होगा। मैंने कभी किताबों में पढ़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई
जलवा होता है, ऐसा भी कोई महल होता है। लेकिन मेरे दिल ने कहा ये बहाउद्दीन, तू जानता है ये आलीशान महल किसका है? तो उसी दिल ने सवाल भी किया, उसी दिल ने उसे जवाब भी दिया। ए बहाउद्दीन, जब ऐसा कहीं नहीं होगा तो याद कर ले, यकीन जान ले, जब ऐसा महल कहीं नहीं होगा तो वो महल तेरे महबूब का महल है। मैंने जाना कि मेरे आका हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलीशान महल है। मैं उस दरवाजे पे पहुंचा। मैं उस दरवाजे पे पहुंचकर अपनी पेशानी को वहां दर पे लगाया और चूमा, बोसा दिया और क्या मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, यहाँ तक तो बड़े बड़े नहीं पहुंचे हैं, तू इस नाचीज पर इतना करम फरमाया है, बड़ों को पीछे छोड़ के तेरे महबूब की बारगाह तक पहुंच गया। ये आका नक्शबंद, इनका सदका हम खाते हैं, इनसे मोहब्बत करना चाहिए। इनका जिक्र सिर्फ इसी जलसे में नहीं करना चाहिए, और भी जलसे हों तो वहाँ भी जिक्र करना चाहिए। इन्हें नक्शबंद क्यों कहा जाता है? ये भी सुने आप। नक्शबंद इसलिए कहा जाता है कि ये जिस पर तवज्जो डालते थे उसके दिल में अल्लाह नक्श हो जाता था। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, अल्लाह नक्श हो जाता था। अल्लाह ने इन्हें बात तसव्वुफ की बातें हैं। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर मशाइख में से हर एक को अल्लाह, बड़ा प्यारा मकतूब है वो महफूज, दो आईने देता है। क्या देता है? दो आईने देता। वो अल्लाह ने हमें 6 आईने दिए। सुभान अल्लाह। अपनी बात इन्होंने लिखा, लेकिन उस बात को कोई समझा नहीं। यहाँ तक कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के सिलसिले के बड़े बड़े वली जो बाद में हुए वो भी नहीं समझे। समझा कौन? सरहिंद का ताजदार समझा। वाह क्या बात है। समझा कौन? सरहिंद के ताजदार किंदीले नूरानी समझा। वाह। रमज़े हक्कानी समझा, यानी मुजद्दिद अल्फसानी समझा। वो इरशाद फरमाते हैं 6 जिहतें जो हैं, जो 6 जिहतें हैं, 6 जिहतों से मुराद ये लताइफ़े खमसा है और नफ्स है। सुभान अल्लाह। लताइफ़े खमसा है और नफ्स है। हमारे हजरत जो दर्स देते हैं कि लताइफ़े खमसा का जिक्र कराने के बाद नफ्स की तलकीन करते हैं और दर्स देते हैं। और नफ्स का जब जिक्र बताया जाता है तो नफ्स के जिक्र के तहत जो ये 4 और लताइफ हैं वो भी उस मकाम को, सालिक उस मकाम को भी तय कर लेता है। मेरे मुर्शिद का करम है, हक है बेशक है। तो उसे एक पल में, आपका तो सीवान में आपने चैलेंज के साथ कहा था, मुझे याद है हजरत मुफ्ती आफाक रहमतुल्लाह अलैह थे, आपने इरशाद फरमाया अगर मैं काफिर के दिल पर भी तवज्जो कर दूं तो उसका दिल भी अल्लाह अल्लाह बोले। वाह सुभान अल्लाह, हक है वाह। मेरा पीर तो ऐसा है। आज भी याद है हुजूर मुफ्ती आफाक रहमतुल्लाह अलैह भी थे और भी उलमा थे। आपने इरशाद फरमाया मुफ्ती साहब अल्लाह ने मुझे नवाजा है, इतना नवाजा है कि मैं काफिर के दिल पर भी तवज्जो डाल दूं उसका भी दिल अल्लाह अल्लाह करेगा। शर्त ये है कि वो मोमिन नहीं है तो उसके दिल में नूरानियत नहीं रहेगी। नूरानियत नहीं रहेगी। दिल तो जाकिर हो जाएगा लेकिन नूरानियत नहीं रहेगी। मुझे एक होता है दिल का हरकत करना, एक होता है दिल हरकत भी करे नूरानियत के साथ। वाह हरकत भी करे नूरानियत के साथ। और जब नूरानियत होती है, नूर होता है, तब सालिक आगे बढ़ता है। हजरत इमाम रब्बानी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का खास करम है, अल्लाह ने हमें हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद का सिलसिला अता फरमाया और ऐसा सिलसिला अता फरमाया कि मैं इस सिलसिले में 1 कदम रखता हूँ और सिलसिलों में 7 कदम रखने के बराबर है। और सिलसिलों में 7 कदम रखने के बराबर है, यानी मैं 1 कदम चलूं तो और सिलसिलों को 7 कदम चलना पड़ेगा। पे हम पे कोई फतवा न लगा, ये इमाम रब्बानी का कौल है, मेरा अपना कौल नहीं है, ये इमाम रब्बानी का कौल है।
इमाम रब्बानी कौन है कि गौसे आदम ने इरशाद फरमाया है कि ये मेरा नाइब है, नाइब है। ए चिश्तियों, कादरियों, सोहरवर्दियों, नक्शबंदियों, सुनो सुनो, तुम चाहते हो मैं सिर्फ कादरी रहूं, अब कादरी फैज मिल जाए तो तुम्हारे लिए जरूरी है इमाम रब्बानी से सच्ची मोहब्बत रखो। सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने कहा मेरा नाइब है, मेरे नाइब को छोड़कर मुझ तक पहुंचोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे, यानी मुजद्दिद फिसानी का दामन पकड़ना पड़ेगा गौसे आजम तक पहुंचने के लिए, गौसे आजम का फैज पाने के लिए सरहिंद तक पहुंचना पड़ेगा। जो सरहिंद नहीं